Hello students, today we are starting chapter 5, the magpies lesson. So let's start. Magpies are found in America, Europe and Australia. Magpie पक्षी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. They are black and white in color. वे काले और सफ़ेद रंग के होते हैं. They are sociable birds who love brightly colored objects. वे मिलनसार पक्षी होते हैं जिन्हें चमकीली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं. Which they often steal from people's gardens. जिन्हें वे अक्सर लोगों के बगीचों से चुरा लेते हैं. Years and years ago, ever so many years ago, only one bird in the whole world knew how to build a nest. बहुत बहुत साल पहले पूरी दुनिया में केवल एक पक्षी को घोंसला बनाना आता था. That wise bird was the magpie. वह समझदार पक्षी magpie थी. One day all other birds went to the magpie. एक दिन सारे अन्य पक्षी magpie के पास गए. They wanted to learn how to build nest. वे घोंसला बनाना सीखना चाहते थे. They begged the magpie to teach them. उन्होंने magpie से विनती की कि वह उन्हें सिखाएं. Indeed, I will be glad to teach you, said Mrs. Magpie. बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाकर खुश होऊंगी, Mrs. Magpie ने कहा. Just watch and listen to me. बस मुझे ध्यान से देखो और सुनो. First you must choose a tall tree like this great oak. सबसे पहले तुम्हें एक ऊंचा पेड़ चुनना होगा जैसे यह बड़ा ओक का पेड़. Then take sticks. फिर डंडियाँ उठाओ. A tree broke in the bald eagle, a tree here in this valley. एक पेड़ बीच में ही बाज ने टोका, इस घाटी में पेड़. No trees nor valleys for me. मेरे लिए न तो पेड़ और न घाटी. My nest shall be on the highest cliff of the mountain. मेरा घोंसला पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पर होगा. And away flew the eagle without waiting to hear more of the magpie's lesson. और बाज उड़ गया बिना मैगपाई की बाकी का सबक सुने. To this day he puts together a few rough sticks on a rocky mountain cliff and calls them a nest. आज तक वह कुछ खुरदुरी डंडियां पहाड़ की चट्टान पर रखता और उसे घोंसला कहता. The magpie began again. Take sticks like these set to a high branch. मैगपाई ने फिर शुरू किया. ऐसी डंडियां लो, उसने कहा, और उन्हें एक ऊंची डाल पर रखो. Are you a fool? cried the lark. क्या तुम पागल हो? चहक कर बोली लार्क. Don't you know that the first strong wind will blow your nest to the ground? क्या तुम्हें पता नहीं कि पहली तेज हवा तुम्हारा घोंसला जमीन पर गिरा देगी? And the first boy who comes this way will throw stones at it, added Mrs. Bobolink. और जो पहला लड़का यहाँ आएगा वह उस पर पत्थर फेंकेगा, मिसेस बोबोलिंक ने जोड़ा, यानी ऐसा कहा. नो हाई ब्रांचेस फॉर अस, sang the lark and the bobolink together. हमारे लिए ऊंची डालें नहीं, लार्क और बोबोलिंक ने साथ में गाया. And down they flew into the tall grass of the meadow. और वे उड़कर नीचे घास के मैदान में चली गईं. There they have made their nest ever since. तभी से वे वहीं अपने घोंसले बनाती आ रही हैं. मिसेस मैगपाई didn't even look at the birds flying away. मैगपाई ने उड़ते पक्षियों की ओर देखा तक नहीं. Weave the sticks together, so in and out, she said cheerfully. डंडियों को इस तरह गूंथो, अंदर बाहर, उसने खुश होकर कहा. That will make the bottom of the nest. इससे घोंसले का नीचे का हिस्सा बनेगा. I will not set my nest on a branch like that, spoke up the ओरियल. मैं अपना घोंसला ऐसे डाल पर नहीं रखूंगी, ओरियल ने कहा. The wind surely would blow it off, as the lark just said. हवा तो इसे उड़ाकर ले जाएगी, जैसा लार्क ने कहा. And the ओरियल flew away and hung her nest from little twigs. और ओरियल उड़ गई और अपने घोंसले को छोटी टहनियों से लटका दिया. There you may see it even today, swinging in the wind far out at the end of a long branch. आज भी तुम उसे देख सकते हो, एक लंबी डाल के सिरे पर हवा में झूलते हुए. Cover the inside of your nest with mud, Mrs. Magpie went on. अपने घोंसले के अंदर को मिट्टी से ढको, मैगपाई आगे बोली. Then line it with soft grass so. और फिर उसे मुलायम घास से बिछाओ इस तरह. Dear dear, so much work to make a nest, yawned the whippoorwill. अरे बाप रे, घोंसला बनाने में इतना काम, जमाई लेते हुए यानी उबासी लेते हुए बोली whippoorwill.
आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रबल, मैं इतनी परेशानी नहीं उठाने वाली। एंड दैट लेजी बर्ड हैजंट मेड अ नेस्ट फ्रॉम दैट डे टू दिस, और वह आलसी पक्षी उस दिन से आज दिन तक घोंसला नहीं बनाती। शी जस्ट लेज हर एग्स इन अ हॉलो इन द ग्राउंड और परहैप्स ऑन अ लॉग, बस अपने अंडे जमीन के गड्ढे में या लकड़ी के तने पर रख देती है। Who would go to all that trouble? hooted the owl. कौन इतनी परेशानी उठाएगा? उल्लू ने हुंकार भरी। I think I have a better plan. मुझे लगता है मेरे पास एक बेहतर योजना है। She looked very wise but said no more. वह बहुत बुद्धिमान दिखी लेकिन और कुछ नहीं बोली। You can guess what her plan was when you find her eggs in a crow's or a hawk's old nest. तुम उसकी योजना समझ सकते हो जब तुम्हें उसके अंडे किसी कौवे या बाज के पुराने घोंसले में मिलते हैं। नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक्स बिगेन द मैकपाई वंस मोर। अब और मिट्टी और डंडियां लो, मैकपाई ने फिर शुरू किया। यू शुड बिल्ड अ डोम ओवर योर नेस्ट। तुम्हें अपने घोंसले के ऊपर एक गुंबद बनाना चाहिए। दैट इज टू हाइड द लिटिल वंस एंड टू कीप आउट द रेन, ताकि बच्चों को छिपाया जा सके और बारिश से बचाया जा सके। ओह नेवर माइंड द डोम, सेड द रॉबिन। ओह गुंबद की कोई ज़रूरत नहीं, रॉबिन ने कहा। आई विल कवर माई लिटिल वंस विथ माई विंग्स। मैं अपने बच्चों को अपने पंखों से ढक लूंगी। आई कैन हाइड दैम एंड कीप ऑफ द रेन। मैं उन्हें छुपा भी सकती हूँ और बारिश से बचा भी सकती हूँ। यू आर राइट मिसेज रॉबिन, सेड द क्रो, वी हैव नो यूज फॉर डोम्स। तुम सही कह रही हो मिसेज रॉबिन, कौवे ने कहा, हमें गुंबद की कोई ज़रूरत नहीं है। And to this day, neither robins nor crows have built domes over their nest. और आज तक न तो रॉबिन और न ही कौवे ने अपने घोंसलों पर गुंबद बनाए हैं। Mrs. Magpie went on building her nest, just as she knew it ought to be built. मैकपाई अपना घोंसला बनाती रही जैसा कि उसे बनाना चाहिए था। Soon it was done, dome and all. जल्दी पूरा हो गया, गुंबद और सब कुछ। Indeed, Mrs. Magpie, said the swallows, we like your nest. सचमुच मिसेस मैकपाई, स्वेलोज ने कहा, हमें तुम्हारा घोंसला पसंद है। द डोम इज़ अ फाइन थिंग बट वाई शुड वी बिल्ड इट। गुंबद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें क्यों बनाना चाहिए? देर आर प्लेंटी ऑफ डोम्स ऑलरेडी बिल्ट, वी ओनली नीड टू मेक अवर नेस्ट अंडर देम। पहले से ही बहुत गुंबद बने हुए हैं, हमें बस उनके नीचे अपने घोंसले बनाने की ज़रूरत है। एवर सिंस देन मैनी स्वेलोज बिल्ड देयर नेस्ट ऑन बिल्डिंग्स, ऑफन अंडर अ रूफ और अ विंडो लेज। तभी से कई स्वेलोज अपनी जगह इमारतों पर बनाते हैं, अक्सर छत के नीचे या खिड़की की मुंडेर के नीचे। Others have made them under roofs of open barns and still others under eaves. दूसरे खुले खलिहानों की छत के नीचे बनाते हैं और कुछ और छज्जों के नीचे। So all the birds flew away and left Mrs. Magpie without saying thank you. तो सारे पक्षी उड़ गए और मैकपाई को बिना धन्यवाद कहे छोड़ गए। Each one built her nest as she pleased. हर एक ने अपना घोंसला अपनी मर्जी से बनाया। एंड ईच वन थॉट हर वे सो मच बेटर देन द मैकपाइज। और हर एक को लगा कि उसका तरीका मैकपाई से कहीं बेहतर है। द मैकपाई स्टिल बिल्ड्स हर नेस्ट एट द टॉप ऑफ अ हाई ट्री। मैकपाई आज भी अपना घोंसला एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर बनाती हैं। शी मेक्स इट ऑफ मड एंड स्टिक्स एंड कवर्स इट विथ अ डोम टू मेक इट कंफर्टेबल एंड कोजी। वह उसे मिट्टी और डंडियों से बनाती हैं और गुंबद से ढक देती हैं ताकि वह आरामदायक और सुरक्षित हो। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 द ट्री स्पिरिट हम पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू। Jungle.